يا رسول الله يا حبيب الله غوث اعظم بمنے بے سر السما مددی قبلہ دی مددی کعبہ ایما مددی آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہیدی اور پیاری شہزادی جن کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور اہل بیت اطہار کا ذکر خیر انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اہل بیت جس کا لفظی معنی ہے گھر والے، اس میں کون شامل ہے؟ اس میں علماء کے بہت اختلاف ہیں، لیکن اکثر جن کا رجحان ہے وہ اہل ابا کی طرف ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اہل سکنا یہ بھی اہل بیت میں ہے، لیکن جو اہل بیت کی فضیلتیں آقا نے بیان کی وہ اہل ابا ہے، یعنی حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دونوں شہزادے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات یہ بھی اہل بیت میں، جو کہتے ہیں کہ اہل ابا اہل بیت میں ہیں وہ اپنی دلیل پیش کرتے ہیں، جو کہتے ہیں اہل سکنا اہل بیت میں ہیں وہ اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، لیکن جو اہل ابا یعنی حضرت مولا علی، حضرت فاطمہ اور دونوں شہزادوں کو مانتے ہیں وہ کئی دلائل پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین کریمین انہیں چھپا لیا اپنی چادر کے اندر۔ تو حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائیں، آپ نے دیکھا کہ یہ چاروں آپ کی مبارک چادر کے نیچے ہیں، تو کہا یا رسول اللہ کون ہے؟ کہا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو انہوں نے بھی چاہا کہ میں بھی چادر اٹھا کے چلی جاؤں، تو سرکار نے چادر لے دی، کہا نہیں۔ کہا یا رسول اللہ میں بھی تو اہل بیت میں سے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میری زوجیت میں ہو یہی تمہارے لیے کافی ہے، لیکن میرے اہل بیت میں یہ ہے۔ ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے نکلتے تو لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، اور جب حضرت علی کے گھر کی طرف سے گزرتے تو کہتے کہ اے میرے اہل بیت چلو نماز کے لیے۔ ایک یہ دلیل وہ پیش کرتے ہیں، اور ایک دلیل کہ جب نجران کے عیسائیوں نے بالخصوص عبد المسیح جو ان کا پیشوا تھا، جب مباہلے کی بات آئی اور نجران کے عیسائی مباہلے کے لیے تیار بھی ہو گئے، قرآن میں نا اللہ نے فرمایا کہ آؤ تم آ جاؤ، اپنی جانوں کو لے کر ہم آتے ہیں، اپنی اولاد کو لاؤ، ہم
अपनी औलाद को लाते, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते। तैयार हो गए का फला मकाम पे फला जगह मुबाहिला किया जाएगा। मुबाहिला किसे कहते हैं? एक होता मुनाजरा, जबान से बहस होती है। दूसरा होता मुबाहिला, मुबाहिले की कई सूरत है। का चलो दोनों मिलके आग में हाथ डालते हैं, देखते हैं कौन हक पर, जो हक पे उसका हाथ नहीं जलेगा, ये मुबाहिला है। और इस तरह के मुबाहिले बुजुर्गों ने किया। हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने एक बार एक मजूसी से मुबाहिला किया था, ख्वाजा उस्मान हारूनी ने किया। कई रिवायतें मौजूद हैं। और एक मुबाहिला है दोनों आमने सामने आकर एक दूसरे के ऊपर लानत करें। तो ये मुबाहिला जो था यही था। कलाओ तुम अपनी औरतों को, उधर नसारा जमा हो गए, उनका जो सबसे बड़ा मजहबी पेशवा था उनका अस्कफ, वो भी आ गया, उसके सारे चेले चपाटे मैदान में जमा हो रहे हैं। इधर सरकार तशरीफ लाए, और जब तशरीफ लाए तो आपने उधर तो पूरा ईसाइयों का कुंभा जमा हो रहा है, लेकिन नबी ने ना हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, ना मेरे आका ने दिगर अज़वाज मुतहरात को लिया, ना हजरत उमर को लिया, ना किसी साहबी को लिया। क्योंकि कुरान ने कहा कि तुम अपने घर वालों को लाओ, हम अपने घर वालों को लाए। तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाए। तो आका भी तशरीफ लाए, कहा अली कहां है, चलो। फातिमा कहां है, चलो। दोनों शहजादे कहां है, चलो। किसी को नहीं लिया, न किसी को आने दिया, बस यही चले। और जब चले हैं तो इस शान से चल रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान में है। दाईं जानिब हजरत इमाम हसन है, बाईं जानिब सैयदना इमाम हुसैन है। दोनों के हाथ सरकार के मुबारक हाथ में है। आका ने दोनों शहजादों का हाथ थामा है। पीछे हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा चल रखी है, और आपके पीछे मौला अली चल रहे हैं। समझ गए तरतीब? अब ये तरतीब क्यों बनाई चलने की? खास तौर पे जो हमारी माँ बहनें वो सुने। जब चले तो जहां मेरे आका का कदम पाक था, जहां आका का कदम पाक पड़ रहा है, निशान है, तो हजरत फातिमा ज़हरा उस जगह अपना पैर रख दिया। अब जहां हजरत फातिमा का पैर पड़ा तो वहां हजरत मौला अली ने अपना पैर रख दिया। यानी फातिमा वो है कि जिनके निशाने कदम को भी आसमान ने नहीं देखा। अरे सैयदा फातिमा ज़हरा का पर्दा देखो कि किसी खैर मर्द ने आपके निशाने कदम को भी नहीं देखा। और जब पहुंचे मैदान में तो जो अब्दुल मसीह था, ईसाइयों का सबसे बड़ा पेशवा, वो कहता है कि ये कौन है? का यही तो नबी आखिर ज़मा है, इन्हीं से तो मुबाहिला करना है। का ये दाएं बाएं जो शहजादे चल रखे हैं ये कौन है? का ये इनके नवासे हैं जिन्हें ये अपना बेटा कहते हैं, क्योंकि नबी का नसब उन्हीं से। तो उस अस्कब ने कहा था खुदा की कसम फौरन वापस चलो, क्योंकि मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर नबी ने दुआ कर दी और इन दोनों बच्चों ने आमीन कह दिया तो कयामत तक जमीन पर एक ईसाई भी बाकी नहीं रहेगा। यह है शान नबी के शहजादों की। मुबाहिला नहीं किया, सारे नसरानी वापस पलट गए। तो जो अहले अबा को अहले बैत मानते हैं वो अपनी ये दलील पेश करते हैं कि ये अहले बैत अतहार में से है, और इनकी फजीलत में कुरान की आयतें नाजिल हुई, बेशुमार हदीसें हैं। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे अपनी औलाद, अपने घर वालों से सिला रहमी करना, भलाई करना, इससे ज्यादा पसंद है कि मैं नबी के घर वालों से भलाई करूं। कौन कह रहा है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला और हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सबसे बड़े फकीह हैं, बहुत बड़े फकीह आज़म और मज़हब
अहनाफ की जो बुनियाद है ना इन्हीं की रिवायतों के ऊपर। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हुब्बु आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैरुम मिन इबादते सनतिन। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा, तो ये हदीस है, हदीस मौकूफ है कि नहीं? सहाबी जो कहे जो करे वही तो हदीस मौकूफ है। तो गोया हदीस हुई है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद क्या कह रहे? हुब्बो आले मोहम्मदिन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से एक दिन मोहब्बत करना, नबी के आल की एक दिन की मोहब्बत खैरुम मिन इबादते सनतिन, साल भर की इबादत से बेहतर है। साहबी रसूल कह रहे हैं, साहबा के फकीह आजम कह रहे हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद का कौल है कि नबी की औलाद से एक दिन मोहब्बत करना ये साल भर इबादत करने से बेहतर है। इसी तरह से बेशुमार अक़वाल फजाइल अहले बैत अतहार की शान में आए। इनकी शान में तो कुरान नाजिल हुआ। एक मर्तबा हजरत हसनैन करीमैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ये बीमार हो गए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ आपकी इयादत के लिए आए। किसी मरीज की इयादत करना ये सुन्नत है, जाना चाहिए, बशर्त कि वो मरीज सुन्नी सहीह अकीदा हो। समझ रहे हैं? और मरीज के पास ज्यादा देर बैठना भी नहीं चाहिए। गए, इयादत करे, उसकी तकलीफ वगैरह जो पूछे, दुआ करे, चले आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन मरीजों को देखने जा रहे हैं, तो जो देखने जा रखा है उनकी अजमत का जवाब नहीं, और जो दोनों मरीज है उनकी भी रिफत का जवाब नहीं। दोनों नबी के नवासे हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन हैं। सहाबा भी चले, सरकार ने उन्हें देखा, बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, दम किया, है ना। और इधर सरकार अपने नवासों को देख रहे हैं। उधर किसी सहाबी ने हजरत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि आप इनकी सेहत के लिए मन्नत मान लीजिए, नजर मानिए। क्या कहा? नजर मान लीजिए। तो हजरत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने 3 रोजों की नजर मानी। कितने रोजे की? हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, आपने भी मन्नत मानी 3 रोजों की। और आपकी बांदी जो थी उन्होंने भी 3 रोजे की मन्नत मानी। ऐ अल्लाह, अगर हमारे ये बेटे, हमारे शहजादे सेहतयाब हो जाए तो हम 3 दिन का रोजा रखेंगे। ये उनकी मन्नत है ना, माशाल्लाह। ये इसे कहते हैं मन्नते शरई। क्या कहते हैं? पिछले साल मैंने बताया था ना, गुज़िश्ता साल, याद है कि नहीं? खैर याददाश्त के मामले में तो है ना, कल मैंने एक जुमला पूछ लिया था, याद है कि नहीं, तो यहीं भूल गए थे। आधी तकरीर तो बैठे बैठे भूल गए, और जो कुछ बची बाहर जाके भूल गए, है ना। खैर मैं कहता भी नहीं कि पूरी तकरीर याद करें, ये मेरे भी बस की बात नहीं है, लेकिन कुछ जो खास मसले बातें आ जाए, ज़हन हाजिर है, तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा। अच्छा, आपके यहां अगर कोई बीमार होता है तो मन्नत मानते हैं कि नहीं? नजर मानते हैं ना? वो भी बहुत कम लोग। कैसे मानते बताइए? हमारे यहां तो मन्नत मानने के मामले में औरतों का जवाब नहीं है। दरगाहों पर, मज़ारों पर औरतों को जाना जायज नहीं है, लेकिन फिर भी जाएंगी और 5-5 चूड़ियां बांध कर आएंगी। और कई तो न जाने किस चीज के लिए मन्नत मान रहे हैं कि ताले लगा कर आ रहे हैं।
अच्छा कोई छोटी मोटी मन्नत रहती होगी तो धागे बांध देते होंगे, ये सब किस्में अलग अलग है। कोई धागा बांध रहा है, कोई ताला बांध रहा है, कुछ दिनों में ऐसा ना हो कि मोटी मोटी जंजीरें बांध के आ जाए, है ना। ये मन्नत नहीं है। मन्नत की दो किस्में हैं, मन्नते शरई, मन्नते उर्फी। मन्नत, अच्छा दोनों मन्नतें अल्लाह ही, नजर जो मानता है बंदा अल्लाह ही से मानता है, जो भी, है ना, क्योंकि नजर एक वसीला है, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। क्योंकि बुजुर्गान दीन फरमाते ना, और गालिबन रिवायत में भी है कि नजर, क्योंकि जो होना वो तो तकदीर से है, लेकिन नजर ऐसी है कि जो कंजूस के जेब से पैसे निकाल लेती है। जैसे किसी की कोई चीज गुम गई तो नजर माना कि अल्लाह मिल गई तो 100 रुपए सदका करूंगा, उसकी तकदीर में था कि मिलेगी, मिल गई तो 100 रुपए सदका किया ना उसने। तो नजर ऐसी चीज है कि जो कंजूस के जेब से पैसे निकाल लेती है, समझ रहे हैं। अगर रब तबारक व तआला की बारगाह में कहा कि मौला मेरी बेटी की शादी हो गई तो मैं 20 रकात नमाज पढ़ूंगा, मेरे वालिद की तबीयत खराब है, अच्छे हो गए, 5 रोजे रखूंगा, मेरे घर औलाद नहीं है, अगर बच्चा हो गया तो मैं 10 फकीर को खाना खिलाऊंगा, मेरे यहां सिर्फ लड़कियां हैं, लड़का नहीं है, अगर अब जो हमल ठहरा है लड़का हो जाए तो मैं 3 रोजे रखूंगा। ये सब नजरे शरई है, इनका पूरा करना वाजिब है, नहीं करे तो गुनहगार। समझ गए। अब नजरे उर्फी क्या है? किसी बुजुर्ग की तरफ निस्बत करके नजर मानना, मेरा ये काम हो गया, जल्द मैं जमीन लेना चाहता हूं, अगर मिल गई तो मैं सरकार ताजुल औलिया के नाम पर 20 किलो खाना पकाकर गरीबों को खिलाऊंगा, है ना। ये नजरे उर्फी है। इसी तरह बुजुर्गों की तरफ निस्बत करके अगर कोई मन्नत मानी जाए तो ये मन्नत भी सही है, क्योंकि मन्नत तो अल्लाह ही से मांग रहा है, लेकिन जो सवाब है वो बुजुर्ग की बारगाह में पेश करना है ना, क्योंकि मन्नत अल्लाह ही से मानी जाती है, बुजुर्ग एक वसीला है, मन्नत खुद एक वसीला है। अब इससे हटकर अगर कोई मन्नत, जैसे बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, बच्चा लड़का पैदा हुआ तो पैर में कड़ा डाल दिया चांदी का, लड़का तो गैर मुकल्लफ है, उस पे फतवा नहीं लगेगा, लेकिन फतवा माँ बाप के ऊपर है, हुक्म तो माँ बाप पे आएगा। लड़के के हाथ में सोने की चूड़ी क्यों डाली का मन्नत है। बहुत से तो लड़कों का कान वो कर देते हैं, सुराख करके उसमें बाली डाल देते हैं, है ना, कि सब नाजायज है ना, ये मन्नत है। मन्नत इसे नहीं कहते हैं। बुजुर्गों की बारगाहों में जाना, चूड़ियां बांध देना, कपड़े बांध देना, चिंदियां बांध देना, यह मन्नत नहीं है। मन्नत वही है जो मैंने बताया। आगे बात ज़हन में, हजरते मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदा फातिमा ज़हरा ने, आपकी खादिमा ने 3 रोजे की मन्नत मांगी। अल्लाह ने दोनों शहजादों को शिफा अता कर दी, दोनों शहजादों को अल्लाह ने शिफा दी थी, और जब दोनों को शिफा मिली तो अब मन्नत पूरी करना वाजिब। हजरत मौला अली ने भी रोजा रखा, सैयदा फातिमा ज़हरा ने रोजा रखा, आपकी खादिमा ने रोजा रख लिया, लेकिन इफ्तार के लिए घर में कुछ भी मौजूद नहीं। जब इफ्तार के लिए न की है तो सहरी की ही नहीं, बगैर सहरी का रोजा रखा। हजरत फातिमा कहती कि मैं मेरे सरताज हजरत मौला अली से कि आप कुछ अनाज बतौर कर्ज ला ले ताकि इफ्तार के काम आ जाए। तो हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने थोड़े से जौ कर्जे के तौर पर लेकर आए बतौर कर्ज। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा ने उसके 3 हिस्से किए, 3 हिस्सों में डिवाइड किया। जब इफ्तार का वक्त करीब हुआ, आपने जौ पीसा, उस जमाने में हाथ की चक्कियां चलती थी, रोटियां तैयार की, वक्त मगरिब बिल्कुल करीब है,
तीनों हजरात बैठ गए इफ्तार के लिए। करीब था कि मगरिब की अजान हो जाए, एक साइल दरवाजे पे आ गया और कहा कि आए अहले बैते नबूवत, ऐ चश्मो चिरागे खानदाने नबूवत, मैं एक मिस्कीन हूं, खुदा के लिए मिस्कीन को खाने के लिए कुछ हो तो दे दो। रोजे से है, साइल आ गया, लेकिन नबी के खानदान की शान देखो। हजरत फातिमा ने आधी रोटी नहीं दी, एक रोटी नहीं दी, तीनों की रोटियां उठाई और दे दी। और उस दिन उन्होंने पानी से इफ्तार किया। फिर दूसरा दिन आया, रोजे से हैं, इफ्तार का वक्त करीब आया। हजरत फातिमा ज़हरा ने अनाज पीस कर रोटियां बनाई और जब रोटियां तैयार हो गई इफ्तार के लिए बैठी। फिर वक्त इफ्तार करीब आए कि एक साइल दरवाजे पे आ गया और कहता है कि ऐ नबी के खानदान, अहले खानदान, मैं एक यतीम हूं और सुना है कि इस दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। सैयदा फातिमा ज़हरा कहती कि तूने सही सुना है। फिर आपने सारी रोटियां उठाई और दे दी। दूसरे दिन भी पानी से उन्होंने इफ्तार किया। अरे जब इफ्तार के लिए नहीं तो सहरी काहे से कर रहे हो, पानी पी के सही। फिर तीसरे दिन बैठे, इफ्तार का वक्त हुआ, रोटियां तैयार हैं और अभी इफ्तार करने ही वाले हैं कि एक साइल और आ गया और आके कहता है कि ऐ नबी के शहजादों, खुदा के लिए मुझ कैदी की असीर की मदद करो। हजरत फातिमा ज़हरा ने फिर सारी रोटियां दी। तीसरे दिन भी आपने पानी पिया, तीनों हजरात ने पानी से इफ्तार किया। अल्लाह को उनकी ये अदा इतनी पसंद आई कि कुरान में उनका औसाफ बयान कर दिया कि ये ऐसा ऊंचा घराना है कि जो यतीमों की, मिस्कीनों की और कैदियों की मदद करते हैं, अपने मुंह के निवारे ये दूसरों को दे दिया करते हैं। कसम खुदा की, ये जो औसाफ है ये नबी के खानदानी होने का असर है, नबी के शहजादे होने का असर है कि सैयदा फातिमा ज़हरा को मुस्तफा से जो निस्बत है, मौला अली को जो नबी से निस्बत है, उस निस्बत का असर आपकी नस्लों में मुंतकिल होता रहा। अरे ऐसा मुंतकिल हुआ था कि एक बार हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में बैठे हैं और बड़ा सादा लिबास पहन के बैठे हैं। एक आदमी के दीनारों की थैली गुम हो गई मस्जिद में। उसने हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे इल्जाम लगा दिया। पहचाना नहीं कौन है, कहा कि इन्हीं ने चुराई थी। लोग दंग रह गए, लेकिन हजरत के जलाल के सामने कोई कुछ न बोल सका। कहा उस थैली में कितने दीनार थे? तो कहता 1000 दीनार, 1000 सोने के सिक्के। हजरत इमाम जाफर सादिक तशरीफ ले गए, उसको साथ में लेके गए और 1000 दीनार उसे दे दिए। जब वो बाहर निकला हैरत में है, कहा भाई मैंने सिर्फ शक का इजहार किया था कि इन्होंने लिए, लेकिन इन्होंने 1000 दीनार दे दिया, आखिर है कौन? तो कहा कमबख्त पहचाना नहीं, ये हजरत इमाम जाफर सादिक है। सर पकड़ लिया, कहा या अल्लाह मैंने क्या किया, नबी के शहजादे पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। आया मस्जिद में कदमों पे गिर गया, माफी मांग रहा, कहा हुजूर पहचाना नहीं था, गलती हो गई। मेरे दीनारों की थैली मिल चुकी है, उसका माल मिल गया था उसे। कहा हुजूर ये आप अपना माल वापस ले लें, मेरी थैली किसी और ने चुराई थी। वापस कर रहा है, लेकिन हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ले जा, ये सारा माल तेरा है, क्योंकि हम जो दे देते हैं तो फिर वापस नहीं लिया करते हैं। मैं नबी के खानदान का एक फर्द हूं, हमारे खानदान का ये रिवाज है ही नहीं कि देने के बाद ले लिया जाए, जब दे दिया तो सब तेरा है। यह है खानदान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए तो अल्लाह ने इस खानदान की कुरान के अंदर बड़ाई बयान की है, अहले बैत अतहार की, अहले बैत नबूवत की, और फिर सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के औसाफ। अरे आप तो वो हैं कि जिनका इबादत में जवाब नहीं,
रियाजत में जवाब नहीं, सब्र और शुक्र में जवाब नहीं। इसलिए तो सरकार बड़ी मोहब्बत भी फरमाते थे अपनी शहजादी से। अरे इतनी मोहब्बत कि सरकार अक्सर हजरत फातिमा ज़हरा के घर में तशरीफ ले जाते हैं, है ना। और जब ले जाते हैं तो कभी कभी हजरत फातिमा के कामों में मदद भी किया करते थे। अल्लामा काजी अयाद रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत नकल की है कि सरकार जब तशरीफ ले गए तो क्या देखते हैं कि हजरत फातिमा ज़हरा तंदूर के करीब बैठ के, अंगार तंदूर में जल रही है, गर्मी के दिन है, रोटियां बना रही है। सरकार ने जब देखा तो कहा, बेटी तुम अंगार के करीब इतनी गर्मी में बैठी हुई। आपने कहा कि तुम दूर बैठ जाओ, वहां से रोटियां बना के दो, मैं तंदूर में लगाते जाता हूं। बताइए, अरे कौन बाप होगा जो अपनी बेटी से ऐसी मोहब्बत करे, जैसी मोहब्बत मेरे आका ने अपनी शहजादी से की है। इतनी चहीती बेटी, लेकिन जब शादी आपने की है, अरे नबी चाहते तो क्या नहीं दे देते। खुद फरमाते हैं कि मैं अगर चाहूं तो ये मदीने के जो पहाड़ है मेरे इर्द गिर्द दाएं बाएं सोने और चांदी के होकर चले। अल्लाह के नबी सबसे फरमाती कि वह इन्नी कद होती तो मफातिया खजाइनुल अर्द, अल्लाह ने जमीन के खजानों की चाबियां मेरे हाथ में दी है। खजाइनुल अर्द, जमीन के खजानों की चाबी। किसी के हाथ में थोड़ा सा खजाना आ जाए तो सोचता है कि अब मैं रुस्तम हो गया, अब मैं सिकंदर हो गया। लेकिन नबी कह रहे हैं कि मेरे हाथ में खजानों की चाबियां हैं, खजाने नहीं है, खजानों की चाबियां हैं, ये कह रहे हैं मुस्तफा। क्या मतलब? अरे जिसके पास चाबी होती है खजाना उसी का होता है, और जिसके पास चाबी होती है तो देता भी वही है। नबी अपना इख्तियार बता रहे हैं कि खजाने मेरे कब्जे में नहीं बल्कि खजाने की चाबियां हैं, जिसे मैं दूंगा वही मालदार बनेगा, और जिसने ज्यादा किया उससे ले भी लूंगा। हा? अरे नबी जिसे अता करे, नबी की शान, क्योंकि आका खुद कह रहे हैं बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह ने जमीन के खजानों की चाबियां दी। नबी अपनी बेटी की शादी में क्या नहीं दे देते, लेकिन जब दिया है तो एक चक्की दी है, कुछ मिट्टी के बर्तन दिए हैं, एक गद्दा दिया है जिसमें खजूर की छाले भरी है, तकिए दिए हैं जिसमें खजूर की छाले हैं, पानी का मशकीजा है, यह मुख्तसर सा जहज। क्यों दिया? ताकि कौम अपनी बेटियों की कदर और कीमत जान ले और आगे चल के कोई फजूल खर्ची का शिकार ना हो जाए। कि जब ताजदार का कायनात इस इख्तिसार में काम ले रहा है तो तुम न मुतालबा करना और न खुद होकर फजूल खर्ची करना। हाँ, देना जायज है, लेकिन तसन्नो ना हो, किसी को हकीर ना बताएं। अगर आपको अपनी बेटी की शादी में देना दीजिए, लेकिन ये सोच के ना दो कि मैं ऐसा दूंगा कि 4 लोग देखेंगे तो आंखें फट जाएंगी। ये सोच के दिया तो सवाब भी नहीं मिलेगा, दिखावा है। बेटी है इसलिए दो, अल्लाह ने आपको दिया इसलिए दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, फातिमा तू रोटियां बना के दे। आप बैठ गए, हजरत फातिमा रोटी बना के दे रही है, सरकार तंदूर में लगा रहे हैं। कुछ देर के बाद सैयदा फातिमा ज़हरा उठी, कहा कि मैं रोटियां निकाल दूं। तो जो रोटियां हजरत फातिमा ने लगाई, जब निकाली तो सब पकी हुई है, लेकिन मुस्तफा ने जो रोटियां लगाई जब निकाली तो हैरत से रोटी को देख रही, कहीं मेरे आका को हजरत फातिमा देख रही। कहा या रसूल अल्लाह, अरे इसका पकना तो दूर गर्म भी नहीं हुई, इतनी देर आग में रखी लेकिन रोटियां गर्म तक नहीं हुई, आखिर क्यों? मेरे आका ने कहा कि फातिमा, ये रोटियां आग पे पक कैसी सकती है? अरे जैसे जिसे तेरे नबी छू दे, जिसे मुस्तफा जाने रहमत हाथ लगा दे, उस चीज पर आग का असर नहीं होता। यह सैयदा फातिमा ज़हरा का मकाम, हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप शहजादी नबी। अच्छा, यहाँ पे बात बता दूं कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत मौला अली
کے نکاح سے پہلے جب حضرت فاطمہ کی شادی نہیں ہوئی بہت پیغام آئے تھے، لیکن سرکار نے منظور نہیں کیا، کیونکہ اختیار ہوتا ہے، نبی کو اختیار ہے، بیٹی کا معاملہ ہے، چاہے قبول کرے یا نہ کرے، کیونکہ ہر باپ اپنی بیٹی ہے نا کہ بھلے کے لیے سوچتا ہے کہ نہیں؟ اچھا، جیسے بیٹی کے لیے سوچتا ہے ویسے بیٹوں کے لیے بھی سوچتا ہے، بولیے نا، ہر باپ سوچتا ہے نا اپنے بیٹوں کی بھلائی، بیٹیوں کی بھلائی، لیکن آج کل کے بیٹے بیٹیاں نہیں سمجھتے، بالکل نہیں سمجھتے۔ آج کل کے نوجوان لڑکے لڑکیاں تھوڑے سے بڑے کیا ہو گئے، سمجھتے نہیں کہ ہمارے ماں باپ ہمارا بھلا چاہتے ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ اچھا نہیں کر رہے ہمارے ساتھ، ہم جس سے بول رہے ہیں اس سے ہماری شادی نہیں کرا رہے، اچھا نہیں کر رہے وہ۔ اچھا، پہلے تیور لڑکوں میں تھے یہ، اب تو لڑکیوں کی بھی ہمت کا جواب نہیں جی، بلیک میل، جانتی ہے کہ میرا باپ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، کابو اگر میری شادی اس سے نہیں ہوئی تو کسی سے نہیں ہوگی، یا تو کنویں میں کود جاؤں گی، آج کل تو کنویں بھی ختم ہو رہے ہیں، پھانسی لگا لوں گی، کچھ اور ہمت کر کے، ٹھیک ہے مت کریے آپ دیکھ لینا، تیسرے دن آپ کو ایک خط چھوڑ کے چلی جاؤں گی، باپ بھی بیچارہ مجبور۔ ہم نے کہا نہیں، کیونکہ تم کتنے بھی اپنے آپ کو ہوشیار سمجھو، میں نہیں کہتا مت سمجھو، لیکن اس معاملے میں نہ سمجھی ہوں، اور جو تمہارے ماں باپ ہے کہ دنیا دیکھے ہوئے ہیں، دیکھیں کہ نہیں؟ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، شاید آپ کو یاد بھی وہ مثال، ماں باپ اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتے، اتنی محبت، لڑکا تو ہے انگوٹھا چھاپ، کتنی پڑھا ہے جی آپ کا بیٹا؟ ارے 8ویں پاس ہے، اور دیکھو تو حضرت 8ویں پاس بیٹے کے لیے ہے نا فائنل، لڑکی فائنل کیوں ہونے کو، پڑھی لکھی ہونے کو، کہتے ہیں کہ نہیں اجی ان پڑھ لڑکی نہیں چلے گی۔ ہم نے کہا بھائی آپ کا بیٹا کتنا پڑھا ہے؟ ارے 7ویں پڑھا ہوا ہے۔ تو اسی سے اندازے لگا دو کہ نوجوانوں تمہیں تمہارے ماں باپ کتنا چاہتے ہیں، اور تمہارے ماں باپ کے نظر میں کتنی قیمت ہے، کہ تم تو ہو ان پڑھ لیکن لڑکیاں تمہارے لیے دیکھ رہے ہیں پڑھی لکھی۔ ارے تمہاری اہمیت ہے ماں باپ کے نزدیک تبھی تو دیکھ رہے ہیں نا، اور اگر اہمیت نہ ہوتی تو ارے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 20 جگہ دیکھ ڈالے، 20 جگہ دیکھے تو کم سے کم 10 جگہ تو اچھی خوبصورت لڑکیاں ہوں گی، پڑھی لکھی ہوں گی، ہوگی کہ نہیں؟ لیکن ریجیکٹ نہیں، میرے بیٹے کے لائق نہیں ہے، میرے بیٹے کے لائق نہیں ہے۔ اب دیکھا واجی ہوا بہت اچھا ہے بیٹا آپ کا، کھرے کھا کھا کے سوکھتے جا رہا ہے، سگریٹ پی پی کے تو حالت ایسی ہو گئی، 6 مہینے پہلے وہ سگریٹ پی رہا تھا، اب 6 مہینے کے بعد سے سگریٹ اس کو پی رہی ہے، ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہ مونگ مسور، اور باپ کہہ رہا ہے 20 لڑکی دیکھنے کے بعد کہ میرے لڑکے کے لائق ملی چھ نہیں۔ ارے خود سوچو کہ تمہارے ماں باپ تم سے کتنی محبت کرتے ہیں، کہ تم کائے میں کچھ نہیں، لیکن تمہارے لیے بیوی کتنی اچھی تلاش کر رہے ہیں، اپنی بہو کتنی اچھی تلاش کر رہے ہیں کہ نہیں؟ سوچو، تم غور کرو اس بات کے اوپر، اور تم جس کے بارے میں ضد کر رہے ہو کتنی تحقیق کی تم نے، کتنا پرکھا اسے، بس اس کی ظاہری صورت، ظاہری شباہت، اس کی مسکراہٹ، اس کی چال دیکھی فدا ہو گئے، لیکن جب ماں باپ دیکھنے جاتے ہیں تو پورا نیچے سے اوپر تک خاندان، حسب نسب نسل سب دیکھ لیتے ہیں، کس برادری کی ہے کیا ہے سب تلاش کر لیتے ہیں، سمجھ رہے نا آپ؟ یہ بہت اہم معاملہ ہے، لیکن اللہ نوجوانوں کو سمجھ دے، اڑ جاتے ہیں ماں باپ کے سامنے، نہیں کریں گے تو یہ کریں گے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اور پھر تمہیں آتا ہی کیا ہے، پڑھ لینا کمال نہیں ہے، کوئی بھی فیلڈ کا آدمی، ایک ڈاکٹر بنا، ڈگری لے لی، لیکن وہ پورا ڈاکٹر نہیں ہوا، انجینئر ہے، ڈگری آ کے انجینئر نہیں بنا، جب تک کہ وہ تجربہ حاصل نہیں کرتا، جب تک کہ وہ اس فیلڈ میں رہ کر
जो उससे बड़ा माहिर है उसकी प्रैक्टिस में नहीं रहता है कोई भी, तो ये चीजें पढ़ने से नहीं आती है, समझ रहे ना जिस पर मैं बातें कर रहा हूं, ये पढ़ने से नहीं आती है, तजुर्बे से आती है। जो हमारे घर के बड़े, हाँ अगर माँ बाप किसी बदअकीदा की लड़की देखे तो बिल्कुल रोक दो, बद मजहब की देखे तो रोक दो, या कोई और उसका किरदार खराब है तो आप रोक दो, समझ रहे हैं। लेकिन क्या करें, आज बहुत सारे नौजवानों की सुन्नियत से हटने का सबब, समझ रहे हैं, ये भी है क्या, समझ रहे हैं। एक तो नहीं कई मिसालें मैं पेश कर दूंगा। आज अक्सर नौजवान जो सुन्नियत में कमजोर हो रहे हैं, बद मजहबों की तरफ माइल हो रहे हैं, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि उन्हें जिनसे उल्फत और मोहब्बत हो रखी है उनके ही अकीदों का पता नहीं, उनके अकीदों को ठिकाना नहीं। और नौजवान इतना अंधा हो गया प्यार मोहब्बत में कि वो ना अकीदा देख रहा है, ना ईमान देख रहा है, ना उसके सीने में छुपा हुआ अल्लाह उसके नबी का बुग़्ज़ देख रहा है, चला उसके पीछे, उसकी मोहब्बत में अपने अकीदे अपने ईमान की दौलत को लुटा दिया, माँ बाप को नाराज कर दिया। इसलिए नौजवानों बच्चों, ये इश्क नहीं है, फिस्क है, फिस्क, है ना। इसलिए इस मामले में अपने घर के बड़ों की राय के ऊपर ही मौकूफ रहो और अपने जहन को, ख्यालात को इन तमाम तसव्वुरात से पाक करो। ऐसी सोहबतों से, ऐसे लड़कों की दोस्तियों से बचो जो तुम्हें इश्को मोहब्बत के नाजायज जाल में फांस दे। ये मजाक नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सीरियस कह रहा हूं। एक मुखलिसाना मशवरा मैं आपको दे रहा हूं कि ऐसे लड़कों की दोस्ती से बचो जो तुम्हें ये इश्कबाजी के जंगल में ले जाके डाल दे। नहीं, अपने अकीदे की, ईमान की हिफाजत करो, सबसे बड़ा सरमाया यही है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बहुत पैगाम आया, लेकिन मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सरकार ने कबूल किया, अपनी बेटी का निकाह अली से कर दिया। एक सहाबी ने अपना मकान दिया, हजरत अली वहां पे रह रहे हैं, और फिर हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अच्छा कभी कभी बतकादा बशरी मियाँ बीवी में भी बड़े बड़े घरों में हुआ है ना, होता ही है कुछ ना कुछ। एक बार हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ऐ फातिमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फला मकाम से कुछ बांदिया और गुलाम आए हैं माले गनीमत में, तो तुम अकेली काम करके थक जाती हो, मुझे भी पानी भरना पड़ता है, तो जाओ आका से एक बांदी या गुलाम मांग के ला लो। हजरत फातिमा तशरीफ ले गई, कहा या रसूलल्लाह, मैं देखिए हाथ में छाले हैं, चक्की चलाती हूँ, बड़ी मेहनत करती हूँ, अगर एक बांदी आप अता फरमा। तो सरकार ने कहा कि ऐ बेटी, तुझसे पहले इन बांदी और गुलामों पर, इस माले गनीमत पर बदर के जो शोहदा है उनके यतीमों का हक है। इंसाफ देखो मेरे आका का। कहे बेटी फातिमा, पहले उन्हें दिया जाएगा कि जिनके बाप, जिनके भाई, जिनके शोहर जंगे बदर में शहीद हुए हैं। सरकार ने नहीं दिया। और जब हजरत फातिमा जाने लगी तो कहा कि फातिमा बैठो, मैं तुम्हें एक चीज देता हूं जो बांदी और गुलाम से बेहतर है। कहा या रसूलल्लाह क्या है? तो कहा कि ये वजीफा पढ़ना, कभी किसी बांदी गुलाम की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने काम खुद कर लो। कहा क्या है? कहा रोज है ना, जब तुम बैठना तो यकसुई के साथ 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, बोलिए ना सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, टोटल 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़ना। हजरत फातिमा बड़ी खुश हो गई। अरे बांदी गुलाम मिलते तो उतनी खुश ना होती। नबी ने खुसूसियत से दिया। आज हमें हमारा शेख अगर कोई वजीफा दे दे, इजाजत देते तो बड़े खुश होते हैं, मुझे इस वजीफे की इजाजत है। लेकिन सैयदा फातिमा तो ज़हरा को तो खुद नबी ने दिया। आके हजरत मौला अली से कहा तो हजरत मौला अली बड़े खुश हुए, कहा तुम्हें वजीफा दे दिया है नबी की बारगाह में। कहा या रसूलल्लाह, जो वजीफा आपने दिया है तो क्या वो सिर्फ फातिमा के लिए है कि अली के लिए भी है?
आका ने कहा कि अली तुम्हारे लिए भी है। अब कुर्बान जाइए मौला अली की अजमत पर कि पूरी कौम मुसलमा पे हजरत अली का एहसान। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये वजीफा सिर्फ अली और फातिमा के लिए है कि आपकी पूरी उम्मत के लिए है? मुस्तफा ने कहा पूरी उम्मत के लिए। जो ये वजीफा पढ़ेगा सबको इसका नफा मिलेगा। ये हजरत मौला अली की शान। सरकार ने नहीं दिया बांधी खोला, वजीफा दिया, बताया, दुआ बताई, का चले जाओ, चले। क्यों नहीं दिया? सरकार ने बांधी, गुलाम जब मांगे गए, क्यों नहीं दिया? इसलिए क्योंकि हजरत फातिमा ज़हरा को उनके शोहर हजरत मौला अली ने भेजा था। सरकार ने नहीं दिया क्योंकि निगाह मुस्तफा इस दौर को भी देख रही थी। निगाह मुस्तफा इस दौर को भी देख रही थी। नबी देख रहे थे कि जमाना आएगा, खूब मांगना चांगना लगा रहेगा। लड़की तो कर रहे हैं लेकिन इतना जहेज लगेगा, उतना जहेज लगेगा। और जब हम जैसे छोटे मोटे है ना मौलवी तकरीर करे कि नहीं भाई जहेज मांगना जायज नहीं, और वाकई मांगना जायज नहीं है। जहेज लड़की का हक है। हजरत मुफ्ती शरीफ उल हक साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जहेज ये लड़की का हक है और लड़की की इजाजत के बगैर उसका शोहर जहेज की कोई चीज बेच भी नहीं सकता है। ये लड़की का हक है। ससुराल वाले सोचते कि हमारा हक है, इसलिए ये भी दो वो भी दो। बाप का इख्तियार है अपनी बेटी को जो चाहे वो दे दे, लेकिन लड़की के ससुराल वालों को हक नहीं है कि मुंह से मांगे, क्योंकि मुंह से मांगना ये तो वैसे भी जायज नहीं, सवाल करना हराम है। जहेज लड़की का हक है, लेकिन शादियों को इतनी महंगी और मुश्किल ना बनाओ कि गरीब आदमी अपना सर पकड़ के बैठ जाए कि बेटी की शादी कैसे करूं। एकदम ज्यादा रिवाज भी ना बनाओ जहेज का कि गरीब आदमी सोचने लगे। अक्सर यही हो रहा है, आपने बड़ी बेटी की शादी में ये दिया था, हम छोटी बेटी की शादी में भी ये देना है। होता है कि नहीं? अरे हर वक्त आदमी के हालात एक जैसे नहीं होते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को गुलाम और बांदी ने की दिया, वापस कर दिया, क्योंकि मौला अली ने भेजा था। निगाह नबूवत देख रही थी। एक दौर आएगा कि लोग मुंह से जहेज मांगेंगे, शादियां करेंगे, मुंह से कहेंगे कि लड़की हम आपकी मांग तो रहे हैं लेकिन ये चाहिए, जहेज में हमें ये सामान चाहिए, इतना पैसा चाहिए। नबी ने ना देकर सारे दरवाजे बंद कर दिए कि अगर उस दिन मुस्तफा हजरत फातिमा के मांगने पर दे देते, हजरत फातिमा ने तलब की और नबी अता कर देते, तो जितने आज दुनिया के लालची है, जितने जहेज खोर है, जितने जहेज मांगने वाले लालची इंसान हैं, मना करने पर वो हम जैसे मौलवियों को यही जवाब देते कि मौलाना बस करो, अली ने भी तो मांगा था और नबी ने भी तो दिया, तो गोया जहेज मांगना अली की सुन्नत, देना नबी की सुन्नत। तो ना देकर मुस्तफा ने उठने वाले फितने का दरवाजा बंद कर दिया कि जब ससुराल वाले मांगे तो तुम मत दो। ससुराल वाले जब मांगे तो बिल्कुल मत दो, जैसा अली ने मांगा तो नबी ने नहीं दिया। समझ गए आप? सरकार ने देखो कितना बड़ा, अगर नबी दे देते तो आज लोग दलील बना लेते हैं, और अपने काम के लिए तो पहले दलील याद रखते हैं, बाकी की चीजें याद ना हो, लेकिन अपने मतलब की है तो सारे दलाइल याद, जबान ज़ात किस किताब में है, किस रावी ने इसे बयान किया है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान वो बयान फरमाई। अच्छा, ये वो सखी घराना, सखावत के एक वाक़या ज़हन में और आ रहा है, इजाजत है तो बयान कर दूं। हजरत फातिमा ज़हरा
रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान देखो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास इस हदीस के रावी है कि एक मरतबा बनु सुलैम का एक आदमी आया और मादल्ला भरे दरबार में सरकार की गुस्ताखी करने लगा। कहता है कि क्या तू ही मादल्ला, तुम ही वो पैगंबर हो, तुम ही वो जादूगर हो कि जिसके वजूद का साया नहीं पड़ता है? मादल्ला। हजरत उमर ने तलवार खींची। नबी ने कहा उमर नहीं, आप फरमाते हैं कि ये बंदे खुदा मैं तुझे दावत देता हूँ आ इस्लाम की तरफ, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं जादूगर नहीं हूँ, अल्लाह का नबी हूँ। जब आपकी उसने ये मोहब्बत भरे कलमात सुने तो दिल पसीज गया, कदमों पे गिर गया, ईमान ला लिया। आका फरमाते तेरे पास कुछ माल है का हुजूर? मेरे बनु सुलैम में 400 लोग हैं लेकिन सबसे ज्यादा फकीर मैं ही हूं। आका ने फरमाया कि कौन है जो इसे सवारी देगा? हजरत उबादा इब्न सामित खड़े हुए कहे या रसूल अल्लाह, मैं ऊंट, इसे एक ऊंट नहीं दूंगा। आका फरमाते कौन है जो इसका सर ढांपेगा? हजरत मौला अली उठे और अपनी दस्तार, अपना अमामा उसके सर पर रख दिया। कौन है जो इसे खाना खिलाएगा? हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे और कहा या रसूल अल्लाह, मैं भी इसके खाने का इंतजाम करके आता हूं। आप मदीना शरीफ के कई दरवाजों पे गए लेकिन ये वो सब्रो इस्तिकलाल का जमाना था, लोग जमा करके नहीं रखते थे, मिल गया तो खा लिया। हजरत सलमान फारसी ने 2-4 घरों में दस्तक दी, कुछ न मिला, और मकान पे दस्तक दी, खाने का कुछ न मिला, तो हजरत फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे दस्तक दी। आपने दरवाजा खोला, हजरत सलमान फारसी कहती कि शहजादी क्या खाने के लिए कुछ है? नबी की बारगाह में एक मेहमान है, आका ने कहा है कि कौन है जो इसे खाना खिलाएगा, तो क्या कुछ है? तो हजरत फातिमा ज़हरा कहती कि सलमान 3 दिन से हमारे यहाँ कुछ नहीं बना है, कुछ हो तो बने, कुछ नहीं, लेकिन चूंकि तुम दरवाजे पे आ गए हो वापस करना अच्छा नहीं लगता, वापस कर दूं ये मुझे मुनासिब नहीं। आपने अपनी मुबारक चादर रिदाए फातिमा, अरे वो रिदाए फातिमा कि जिसकी कीमत अगर पूरी दुनिया को बेच दिया जाए तब भी अदा नहीं हो सकती, वो रिदाए फातिमा है कि पूरी दुनिया के खजाने जमा भी कर दिए जाए ना तो रिदाए फातिमा के एक पेबंद का भी हक अदा नहीं हो सकता। वो मुबारक चादर हजरत फातिमा ने हजरत सलमान फारसी को दे दिया, कहा कि जाओ शमऊन यहूदी से कहना कि ये फातिमा की चादर है, इसे रहन रख ले, कर्जे के तौर पे रख ले, और कुछ जौ दे दे, इस चादर के बदले में जौ दे दे। तो हजरत सलमान फारसी गए, शमून यहूदी था, कहे शमून पूरे वाकयात हालात बयान किए कि एक मुसाफिर आया, खाने के लिए कुछ नहीं, हजरत फातिमा क्या कुछ नहीं तो चादर दी। शमून ने वो चादर ली, सर पे रखी, यहूदी है, चादर सर पे रख के रोने लगा और कहता है कि सलमान जानते हो, अरे यही वो लोग हैं जिनकी खबर हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम ने दी थी, अरे यही वो लोग हैं कि जिनके तुफैल आसमान बरसता है तो जमीन उगाती है, यही वो लोग हैं कि जिनके वसीले से दुनिया वाले अपना पेट भरते हैं। कहे सलमान गवाह हो जाओ कि मैंने इनके वालिदे मोहतरम पर, नबी करीम पर सच्चे दिल से ईमान ले आया। अरे सैयदा फातिमा ज़हरा की रिदाए मुबारक की बरकत देखो, एक शमून ने सर पे रखा तो हिदायत मिल गई, दौलत ईमान से सरफराज हो गया, उसने वो चादर भी बा एहतराम वापस की और जौ भी दे दी। हजरत फातिमा ने शमून को दुआएं दी, जौ से रोटियां तैयार की और दे दी। हजरत सलमान कहते कि फातिमा क्योंकि माल आप ही का है, आप ही की वजह से मिला, कहा कुछ बच्चों के लिए ले लो। आप कहते हैं नहीं 3 दिन से फाका है, लेकिन कहा नहीं, अल्लाह की राह में देने के लिए बुलाया है, अब इसमें से कुछ नहीं लूंगी, सब दे दिया। हजरत सलमान जब तशरीफ लाए, अरे निगाहे मुस्तफा से क्या छुप सकता है, आका फरमाते कि सलमान कहो क्या मामला है फातिमा का। आपने सब कह सुनाया, जितने दरबारी बैठे थे आंखों से आंसू जारी हो गए। सैयदा फातिमा ज़हरा का इशार सखावत देखकर मेरे आका ने वो रोटियां उस बनु सुलैम के उस फर्द को दी और उठकर फातिमा ज़हरा के घर तशरीफ ले गए। सैयदा फातिमा को अपने करीब बिठाया, तसल्ली और तस्कीन दी, कहे फातिमा यहाँ की भूख कल की नेमतों का समरा होगी,
آج تم نے بھوک برداشت کیا، کل نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اور آسمان کی طرف دیکھ کر عرض کرتے کہ مولا یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، اس سے تو راضی ہو جا اور دنیا کو اس سے راضی کر دے۔ یہ ہے سیدہ کی شان، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پاک اور مقدس خاتون ہے۔ ارے آپ کے پردے کا جواب نہیں ہے جی، اپنے گھر کی بچیوں کو پڑھاؤ، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کے ہاتھ میں کتاب دو سیرت کی، فاطمہ الزہرا کی سیرت، اپنے گھر کی عورتوں کے ہاتھ میں حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت دو، کب پڑھو اسے۔ بند کرو گے ٹی ویاں دیکھنا، بند کرو گے ٹی ویوں پر ساس بہو کے جھگڑے دیکھنا، کب تک کہ تم فحش دنیا دار ناپاک عورتوں کے ٹی وی پہ نظارے کرو گی؟ بتاؤ اپنے گھر کی عورتوں کو، جیسا ٹی ویوں پہ عورتوں کا کردار دیکھ رکھی ہے ویسے ہی تمہاری بچیاں نقالی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بند کرو گے ٹی ویاں اور ان کے ہاتھ میں سیرت فاطمہ الزہرا دو، سیرت عائشہ صدیقہ دو، کہ یہ پڑھ کر فاطمہ الزہرا کی کنیز بننے کی کوشش کرو۔ کیا پردہ تھا آپ کا؟ ارے آسمان نے آپ کے کھلے سر کو نہیں دیکھا کبھی، لیکن جب وقت اخیر ہے تو چہرے پہ فکر مندی ہے۔ کہے فاطمہ اتنی فکر کیوں؟ کیا دنیا سے جانے کی فکر کا نہیں؟ حضرت اسماء بنت امیس جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، انہیں بلایا۔ حضرت اسماء نے پوچھا کہ یہ فاطمہ کیا بات ہے، تم بڑی بے چین رہ رہی ہو، بے قرار ہو، کیا بات ہے؟ تم کہیں موت کی گھبراہٹ تو نہیں؟ کہا موت کی گھبراہٹ نہیں ہے، بلکہ مجھے اس بات کی فکر ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جب جنازے نکلتے تو کھلی چارپائی کے اوپر، پہلے جو جنازے جاتے تھے نا کھلی چارپائی رہتی تھی، اسی کے اوپر جنازے چل رہے ہیں، کفن میں لپٹی باڈی الگ دکھتی تھی، جبکہ عورتوں کو 5 کپڑوں میں لپیٹا جاتا ہے۔ لیکن آپ کہتی کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ وہ فاطمہ کے جسے کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، اس کے جنازے کو پورا شہر دیکھے گا۔ بس یہی فکر ہے کہ فاطمہ کا جنازہ نکلے گا کیسے لوگوں کے سامنے، تو کوئی ترکیب بتاؤ۔ تو حضرت اسماء بنت امیس کہتی کہ میں نے فلاں شہر میں دیکھا کہ لوگ اپنے جنازوں کو ایسا نکالتے ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے لکڑی کی کمانی بنائی، کمانی، اور اس کے اوپر چادر ڈالی اور چارپائی پہ رکھا۔ حضرت فاطمہ اتنی خوش ہوئی، اتنی خوش، اور بہت دعائیں دی، کہا میرا جنازہ ایسے نکالنا۔ یہ جو ڈولے کے اوپر رہتا ہے نا کمانی، یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی دین ہے، ورنہ پہلے جنازے کھلے نکلتے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا نے اس کے اوپر کمانی ڈلوائی۔ کتنا پردہ! ارے فاطمہ الزہرا نے پوری زندگی پردہ نہیں چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ جب میدان محشر قائم ہوگا، اگلی پچھلی ساری امتیں جمع ہوں گی، اس میدان میں ایک آواز گونجے گی کہ اے اہل محشر اپنی نگاہ جھکا دو، کیونکہ فاطمہ بنت محمد پل صراط پار کر رہی ہے۔ جتنے اہل محشر ہیں سب اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے، نگاہوں کو جھکا دیں گے، تب حضرت فاطمہ 70,000 حوروں کے بیچ میں پل صراط پار کریں گی۔ یہ ہے نبی کی بیٹی کی شان۔ ارے صدقہ مانگو فاطمہ الزہرا کا، وہ خاتون ہے، خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار۔ اس لیے تو میرے آقا نے فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کہہ دو آپ کہ میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، قیمت نہیں مانگتا، بس یہی چاہتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرنا، میری آل سے محبت کرنا، میری اولاد سے محبت کرنا۔ ارے اہل بیت کی محبت یہ تو جزو ایمان ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جب تک اہل بیت کی محبت دل میں نہ ہو تو ایمان مکمل ہی نہیں، بندہ مومن کامل ہی نہیں۔ مومن کامل اگر بننا ہے تو اہل بیت سے محبت کرنا ہوگا۔ اور یہ ہمارے اکابرین علماء اہل سنت کا ایک اجماعی فیصلہ اور مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت یہ سفینہ نوح کی طرح ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی سفینہ نوح نیٹ پہ بہت چلا تھا، نیٹ پہ ایک پہاڑی کے اوپر ایک نشان بنا ہے، خوب چلا تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی۔ ہزاروں سال گزر گئے نوح علیہ السلام کو، اور وہ کشتی بھی بڑی لاجواب۔ اچھا سرکار نے دیکھو مثال بھی دی تو اسی کشتی سے دی، کسی اور کشتی سے نہیں دی، ورنہ
हजारों कश्तियां समंदर में कौन चलाता? बिस्मिल्लाह मजरिहा व मुरसा इन्ना रब्बिल गफूरुर रहीम। अल्लाह के हुक्म से ही तो कश्तियां चलती है, वरना पानी का काम डुबोना है। पानी तो पकड़ के डुबो दे। आज बड़ी बड़ी शिप, बड़े बड़े जहाज चल रहे हैं, कौन चला रहा है? अल्लाह चला रहा है। खुद कुरान में अल्लाह कह रहा है हम चला रहे हैं पानी के ऊपर, वरना पानी तो डुबो दे इतने बड़े बड़े जहाजों को। सैकड़ों कश्तियां उस जमाने में भी चलती थी, पहले भी चली, लेकिन मिसाल दी तो कश्ती नूह से। क्यों? क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो तूफान आया था ना, जमीन का एक इतना सा हिस्सा भी नहीं बचा था, सिर्फ पानी था और ऊपर आसमान था। नीचे पानी, ऊपर आसमान। आपके खानदान और घर वालों को मिलाकर 80 लोगों ने ईमान लाया था। नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया कश्ती बनाओ। कश्ती बनाई आपने, 3 मंजिला। सबसे ऊपर है ना परिंदों को, चरिंदों को, बीच में दरिंदों को, और फिर नीचे के हिस्से में इंसान। आप हर नस्ल का एक जोड़ा आपने रख लिया। नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं या अल्लाह मैं कश्ती तो बना रहा हूं, लोग बहुत मजाक उड़ा रहे हैं। रेगिस्तान में कश्ती, मजाक तो उड़ेगा ना। ठंड के मौसम में कश्मीर घूमने के लिए गए, वहां कह रहे भाई फ्रीज वाली बोतल दे, फ्रीज की बोतल दे। अरे कश्मीर घूमने गए और फ्रीज की बोतल मांगे तो वहां के लोग तो मजाक तो बनाएंगे ना कि हम नहीं पी रहे हैं, वैसी उठा रहे हो, वैसी पी रहे हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम समंदर है ना की सवारी रेगिस्तान में बना रहे हैं। लोग कहते कि देखो लगता है कि इनकी अक्ल माज़अल्लाह है ना काम करना बंद कर दी कि रेगिस्तान में। आप कहते कि चलेगी, और जिस दिन चलेगी ना सब दांतों तले उंगली दबा लेंगे। देखना भलाई इसी में है कि आ जाओ मेरी कश्ती पर। वो समझ ही नहीं रहा। कहे अल्लाह मुझे पता कैसे चलेगा कि ये कश्ती पे सबको सवार कर लूं? तो अल्लाह ने फरमाया कि जब तेरा तंदूर पानी उगलने लगे, तंदूर से आग निकलती है, कि जिस दिन पानी निकलने लगे सबको सवार कर देना। एक दिन ऐसा आया कश्ती भी बन गई, इधर पानी निकलने लगा तंदूर से। नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं चलो सब कश्ती पे सवार हो जाओ। सबको सवार कर दिया, सबको। शैतान जो था, शैतान इब्लीस है ना, ये भी तो था दुनिया में। तो ये गधे की दुम पकड़ के चढ़ने लगा है ना। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा रुक जा, तू नीचे। कहा नीचे तो मैं जा नहीं सकता। कहा बिल्कुल नहीं, मेरी सवारी पे नहीं आना। शैतान कहता है नूह अलैहिस्सलाम क्या वो वादा याद नहीं जो अल्लाह ने मुझसे किया है कि कयामत तक मैं जिंदा रहूंगा? अगर नहीं चढ़ा तो जिंदा रहूंगा ही नहीं। इसलिए मेरे आका ने उस कश्ती की मिसाल दी कि मेरे अहले बैत सफीने नूह की तरह है। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पे जो चढ़ा था वही किनारे पहुंचा था, और जो रह गया था वही हलाक हुआ था। शैतान को आपने चढ़ाया और सबसे ऊपर का वो जो बांस दिख रहा है उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाओ और किसी से बात नहीं करना। नबी का ऑर्डर था, वो भी चुपचाप बांस पकड़ के बैठा है, वरना 8-10 को वही बहकाने की कोशिश करता हूं। करता है कि नहीं? और नेक मजलिसों में तो ज्यादा शैतान होता है। लोग सोचते हैं शैतान है तो शराब के अड्डे में मिलेगा, जुआ खाने में मिलेगा। नहीं, मस्जिदों में मिलेगा, दरगाहों पे मिलेगा, ये बीच में मिलेगा। समझ रहे हैं? शराब खाने में क्यों जाएगा? वो तो उसका घर है। वो तो कहेगा कि भाई मेरा काम तो यही लोग कर रहे हैं, अब क्यों उनके पीछे पड़ूं? जो नहीं आ रहा है उन्हें लाने जाएगा ना। समझ रहे आप बात? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सबको सवार किया। 6 महीने तक कश्ती घूमती रही, पूरी दुनिया का सफर कर लिया, और जूदी पहाड़ पे जाके रुक गई। और कब रुकी? 10 मुहर्रम को, आशवरे के दिन। और जब रुकी तो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में 6 महीने तक लोग खाते पीते रहे। अब सबके पास खत्म हो गया। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो एक साथ खाने में बरकतें होती हैं, एक साथ अगर खाओ पका के तो बरकत होती है। जिसके पास जो है सब ला लो। सबने पेश कर दिया, किसी ने गेहूं दिया, किसी ने चावल दिया, किसी ने दाल दिया, किसी ने जौ दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने सबको लिया, पका के मिक्स करके पकाया और बेहतरीन खिचड़ा बना दिया। लोग कहते हैं खिचड़ा कहां से साबित? अरे नूह अलैहिस्सलाम ने बनाया था सबसे पहला खिचड़ा। इसलिए सूफिया कहते हैं कि आशवरे के दिन ऐसा मिक्स करके जो पकाएगा, दाल चावल गेहूं जो भी अनाज है, तो 1 साल तक उसके जो जो दाना डाला गया उन तमाम दानों में 1 साल तक बरकतें रहेंगी। इसलिए हम 10 तारीख को खिचड़ा पकाते। कोई पूछे किसकी सुन्नत है तो क्या कहेंगे? नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत। सबसे पहला खिचड़ा
नूह अलैहिस्सलाम ने बनाया था जूदी पहाड़ के ऊपर, और जब पकाया था तो मुहर्रम की 10 तारीख थी, आशवरे का दिन था, है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरे अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, जो सवार हुआ वो पार हुआ और जो रह गया वो हलाक हुआ। और दूसरी रिवायत हजरत उमर फारूक आजम से मरवी, आप फरमाते आकर फरमाया साहबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, इनमें से किसी एक की भी पैरवी करो हिदायत पा जाओगे। उस जमाने में लोग जब सफर करते थे, चाहे रेगिस्तान में करे या फिर समंदर में, रेगिस्तान में करे तो चारों तरफ रेत, समंदर में करे तो पानी पानी, नीचे पानी ऊपर आसमान, रात में सितारों को देख के सफर करते थे, दिन में सूरज को देख के सफर करते, सूरज भी एक सितारा है, समझे। आका फरमाते हैं कि सहाबा सितारों की तरह है, मिसाल दी सितारों की और कश्ती, कश्ती अहले बैत, सितारे सहाबा, सितारों का काम है रास्ता बताना। आका ने फरमाया कि सहाबा हिदायत के सितारे हैं, जो कश्ती पे सवार होकर हिदायत के सितारों से रास्ता मालूम करेगा वो मंजिल को पहुंचेगा। अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हम अहले सुन्नत वल जमात अहले बैत की कश्ती पे सवार हैं और सहाबा जो हिदायत के सितारे हैं उनसे रास्ता मालूम कर रखे हैं, क्योंकि हम अहले बैत वाले भी हैं और सहाबा वाले भी हैं। हम खारजी रखी हैं कि जो सहाबा को तो माने, हिदायत के सितारों को तो माने, लेकिन अहले बैत की कश्ती पे सवार ना हो, और ना ही राफजी है कि जो अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती पे सवार होने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन सहाबा से हिदायत नहीं ले रहे, लिहाजा ना ये मंजिल को पहुंचे ना वो मंजिल को पहुंचे। अगर पहुंचे हैं तो अहले सुन्नत वल जमात पहुंचे। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अरे असहाब ये नुजूम सितारे हैं, इतरत औलाद, और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो जो अहले बैत से भी मोहब्बत करे और सहाबा से भी मोहब्बत करे तो कसम खुदा की उसकी दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। आका फरमाते हैं कि कोई आदमी अगर हरम में चला जाए और फिर वो काबतुल्लाह और मकाम इब्राहिम के दरमियान नमाज पढ़े और वो रोजे से भी हो और मौत आ जाए और इस हाल में मरे कि वो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता, तो आका फरमाते हैं कि वो जहन्नम में जाएगा। जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं, उसका हरम में नमाज पढ़ना भी नहीं बचा सकता, काबे का करीब होना नहीं बचा सकता, रोजे से होना नहीं बचा सकता। आका फरमाते मेरे अहले बैत की मोहब्बत लाजिम है। अरे अहले बैत की मोहब्बत दिल में बसा लो, तभी तो नमाज की लज्जतें भी मिलेगी, रोजे की मनफियतें मिलेंगी, अरे हज का मुकम्मल सवाब मिलेगा। तो सहाबा से भी मोहब्बत हो और अहले बैत से भी मोहब्बत हो, तभी तो दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब होगी। रब तबारक व तआला हम तमाम को अहले बैत अतहार से, सहाबा इकराम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। बोलिए आमीन। बद मजहबों से, बद अकीदों से, सहाबा और अहले बैत के दुश्मनों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।